Right. Catalytic dehydrogenation मतलब elimination of H2. उसके लिए 3 reagents. One is copper 300 degree Celsius. Second one PCC, pyridinium chlorochromate. Structure is here. Then PDC, pyridinium dichromate, similar to potassium dichromate structure. So in place of K, here pyridinium is there. This pyridine means it is like a benzene structure. In one of the carbon place, here it is NH. Okay, pyridinium, right? Now ये तीनों का काम क्या होता है? Dehydrogenation from alcohols. I am taking here one molecule CH3, CH alcohol, ethyl alcohol I am taking. Okay, here it is ethyl alcohol. Ethyl alcohol, right? What it will do? Any one of these. I am using copper 300 degrees Celsius or PCC or PDC. ये तीनों में कोई भी एक यूज कर सकते हैं. Here this hydrogen and this hydrogen is releasing dehydrogenation. तो तब क्या बनेगा? CH3 कार्बन 1 हाइड्रोजन तो एज इट इज, रिमेनिंग डबल बॉन्ड O बनेगा. मतलब aldehyde बन रहे थे. aldehyde फॉर्मिंग हियर aldehyde. कब? प्राइमरी अल्कोहल लेते तो. इफ यू टेक प्राइमरी अल्कोहल you will get aldehydes. Then देखते दूसरा एग्जांपल में. Suppose if I take CH2 CH3 एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया, then क्या होगा? Then also same elimination of hydrogen, that is called dehydrogenation. Now the product is CH3 carbon 2 hydrogens left, मतलब डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH2 CH3. ओके, तो इधर बॉन्ड कट किया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया. इधर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दिया. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन formation of pi bond. So you can understand here easily. See 2 electrons, ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन. This 1 electron forming hydrogen, oxygen electron and carbon electron forming pi bond. Done. Next. Secondary alcohol. If I take secondary alcohol, what I am getting here? Ketones. I am getting here ketones. Secondary alcohols giving ketone. Primary aldehydes giving aldehydes. CH3OH. Next, I am taking only copper 300 degrees Celsius. I am taking. Okay. Suppose if I take PCC and PDC, no reaction. Tertiary alcohols, no reaction. Copper 300, dehydrogenation. Hydrogen तो है नहीं इधर. Then what it will do? So in this case, hydrogen will release from next carbons. Okay, इधर से OH, इधर से hydrogen निकलेगा, तब क्या होगा? देखो, I will show here any one of the hydrogen. Take one hydrogen is like this. Then this hydrogen bond is giving here, this OH is leaving as OH minus. So OH minus and H plus, तो बनेगा H2O. Then this is the product CH3 bond
नीचे CH3 एज इट इज, ऊपर डबल बॉन्ड CH2, मतलब फाइनली क्या हुआ, आल्कीन बन गया, आल्कीन, इट इज फॉर्मिंग आल्कीन, ओके राइट। लेकिन PCC एंड PDC में नो रिएक्शन विद टर्शरी अल्कोहल्स। Next, oxidation. Oxidation. Oxidation में strong oxidizing agent, those are acidic medium KMnO4 and K2Cr2O7, right? If I take RCH2OH, primary alcohols if I take, then initially RCHO is forming, but aldehyde is very sensitive. Alcohol को oxidation हो गया मतलब aldehyde में नहीं रुकेगा. Then it is going to form carboxylic acid. Carboxylic acid. Then suppose secondary alcohol is there, CH3, OH, CH3. Similar PCC, PDC जैसा पहले स्टेप में तो कीटोन बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, okay, this carbon doesn't have any hydrogen, so no further oxidation, लेकिन no reaction, I can say no reaction, but extreme condition में if you take KMnO4 acidic medium heat करे तो then ये तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, वो उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। Suppose a reaction, say is it visible, मैं heat H plus KMnO4 and H plus लेते तो somewhere it will break down, suppose इधर तो break किया होगा, suppose then A भी कार्बोक्सिलिक एसिड, O भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3COOH एंड उधर तो एक ही कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मिक एसिड कभी भी नहीं बनेगा, आगे फार्मिक एसिड easily get converting into carbon dioxide. Victor-Mayer test in the bracket, distinguished test. ये distinguished test मतलब ये तो specific name नहीं है, ये distinguished test तो common होता है, distinguished test of primary, secondary, tertiary alcohols. One distinguished test already we discussed, that is Lucas test. Lucas test, primary, secondary, tertiary alcohol we can identify by the reaction what it is giving. The tertiary alcohols giving immediate precipitation, secondary after 5 minutes, primary after 30 minutes. Once you check it, notes में लिखा था नहीं, Lucas reagent you written already, once you check it, लिखा ना, कल ही लिखा होगा, OH, right. So one more is Victor-Mayer test, it is also known as RBW test. ठीक है, वो क्या होता है RBW देखते हैं। Now primary alcohols, primary
alcohols. I'm taking CH3 CH2OH. Primary alcohols reaction with phosphorus, reaction with iodine in the presence of phosphorus, reaction with iodine in the presence of phosphorus. वो भी red phosphorus होता है जनरली, phosphorus NF, otherwise you can write red phosphorus. देखो फास्फोरस आयोडीन मतलब क्या है, इनडायरेक्टली Pi3 में क्या होगा, PCl3 PCl5 Pi3 PBr3, सब में क्या होगा, OH को निकाल के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा. हम इधर Pi3 इसलिए नहीं लेते, वो Pi3 इज अनस्टेबल, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग. चलो नेक्स्ट, CH3 CH2I बनेगा, ठीक है, राइट. Next, I am taking here AgNO2. Wait, not AgNO2. HNO2 I am taking. AgNO2 first, okay. Right. Then AgNO2 I am taking. AgNO2. Then Ag and halogen, AgCl well known precipitation. Like that AgCl, AgBr, AgI वो तो precipitation बनेगा, ठीक है. और RH plus AgNO2, अभी ये बनेगा कैसे, CH3 CH2. Now you tell me, वो NO बनेगा या NO2 बनेगा. Already I discussed, दोनों में एक ही तो सही है. What it will be, ONO or NO2? NO2 बनेगा, राइट. सो इतना तो क्लैरिटी होना चाहिए, NO2 बनेगा, राइट. NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 तो बनेगा, राइट. नेक्स्ट स्टेप, इज इट विजिबल, राइट. नेक्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग HNO2 OH. HNO2 I am taking. So here काम करते, reaction with HNO2. स्ट्रक्चर होगा, one side OH group, other side double bond group, HNO2, nitrous acid. Now these two hydrogens and this oxygen is released as water molecule. So the formula is CH3C, इधर तो NO2 था, अभी डबल बॉन्ड बन गया NOH, डबल बॉन्ड NOH. What I did, रेड फास्फोरस से हैलोजन बनाया था, उसके बाद AgNO2 AgI बनेगा, then NO2, उसके बाद HNO2 से रिएक्शन, just I removed the water molecule, NOH is there. Now it is reaction with or dissolving in the NaOH, sodium hydroxide. It is giving red color. Precipitation. Okay, primaries. Now secondary alcohol, CH3 OH hydrogen methyl, secondary alcohol. Same process, reaction with iodine, phosphorus, तो बनेगा halide OH, sorry OI,
OA भी नहीं, नॉर्मल है, OH की जगह पे आयोडीन. Then I'm reacting with AgNO2. AgNO2 इतना तक तो सेम है. अभी बनेगा NO2. बस मैं हाइड्रोजन डाउन ले रहा हूं, बस इतना ही. 2CH3 ग्रुप्स आयोडीन की जगह पे देखो, आयोडीन एंड दिस AgI तो बनेगा. NO2 तो सब्स्टिट्यूटेड. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 3 स्टेप्स होता है. पहले स्टेप में पहले फास्फोरस AgNO2 HNO2, राइट. अभी नाउ आई एम टेकिंग HNO2. HNO2 का स्ट्रक्चर लिखे तो इजी होता है रिएक्शन. देखो पहले 2 हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन के साथ H2O निकल गया. अभी एक हाइड्रोजन है, अभी भी वाटर निकालता हूं मैं, लेकिन OH निकालता हूं. इतना डिफरेंस है. देन प्रोडक्ट CH3, one more CH3, NO2 as it is. Here it's single bond, N double bond O बन गया. Now ये तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोडक्ट कुछ. So dissolved in the NaOH, it is giving blue color. It is giving blue color. Secondary alcohols, blue color. Okay. Done. So I am changing here tertiary alcohols. ये तो लिखा होगा everyone. Tertiary alcohol. Tertiary alcohol में tertiary alcohol CH3, CH3, CH3. Then OH की जगह पे आयोडीन. Then AgNO2. Then NO2. इतना तक तो सेम है. 3 रिएक्शंस में अप टू फॉर्मेशन ऑफ NO2 इट इज सेम. पहले HNO2 से रिएक्शन था, उधर से ऑक्सीजन निकल गया था, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी 1 हाइड्रोजन है, दिस OH एंड हाइड्रोजन निकल गया. अभी नो हाइड्रोजन. CH3, CH3, CH3. दिस NO2 अटैच्ड, कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अभी रिएक्शन HNO2 के साथ नहीं होगा. नो रिएक्शन. दिस इज कलरलेस. कलरलेस. ठीक है. अभी RBW मतलब समझ गए हम. पहले रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर तो नहीं है, मिसकंसेप्शन. व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऐसा कुछ नहीं है, कलरलेस. So you can write instead of RBW RBC, RBC red blood cells ऐसा भी लिख सकते हैं. C for colorless. ठीक है, याद रखने का बस, ये ओरिजिनल नहीं है, बस RBW और RBCL colorless. Primary alcohols reaction with dichromate K2Cr2O7 in acidic medium.
देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द एसिडिक मीडियम it is more. It is giving chromium plus 3 compound green color. Green color. Then secondary alcohols. Secondary alcohols reacts with that is also chromium plus 3 compound. Here chromium plus 3 plus acid is giving. Here chromium plus 3 ketone is giving. This is also green color. Then tertiary alcohols already we discussed. Furtherly, there is no oxidation, so no reaction, no color. मतलब इसमें इतना पता चला है tertiary alcohol and remaining alcohol we can distinguish. Primary tertiary या secondary tertiary है तो we can distinguish. Both primary secondary है तो we cannot. और फर्दरली कर सकते हैं ऐसा. अभी इतना तक आ गया. ये एसिड है तो कीटोन है. कीटोन के लिए टेस्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड लिटमस टेस्ट या कुछ अदर टेस्ट वी कैन डू इट. सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लाइक दैट फर्दरली. ठीक है, लिख दो इधर. आइडेंटिफाई तो करना है. सो सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कलरलेस. ठीक है, इसमें से सेम NaOHCO3 यूज किया. ये तो क्या है, तो कीटोन है, नो रिएक्शन. इससे भी पता चलेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. नेक्स्ट Ceric ammonium nitrate. Ceric ammonium nitrate. Write one statement. Ceric ammonium nitrate gives red color. Gives red color. Red color with alcohols. With alcohols. With alcohols. It is also known as. It is also known as. It is also known as alcoholic functional group test. Alcohols. Functional group test. फंक्शनल ग्रुप टेस्ट अभी क्लास 12th में तो है प्रैक्टिकल्स. फंक्शनल ग्रुप टेस्ट. इफ यू वांट टू नो दैट द गिवन कंपाउंड इज इट अल्कोहल और नॉट, सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं तो लैब में मिलेगा. सीरिक अमोनियम नाइट्रेट we will use that. If it is giving red color, yes, that is alcohol. Given one is alcohol. Ceric ammonium nitrate and red color underline करो बस. Next, how can you distinguish methyl alcohol and ethyl alcohol? Question: how can you distinguish methyl alcohol and ethyl alcohol?
एक मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा इथाइल अल्कोहल. How can you distinguish? This is the question, right? So the ethyl alcohol will give iodoformation test. Iodoform test. क्या होता है iodoform test? You will take NaOH plus iodine. NaOH plus iodine. It is giving. देखो ये टेस्ट कौन कौन देते हैं? CH3C ऑक्सीजन. ये ऐसा होना चाहिए, बस इतना तो मेन बेसिक. और रिमेनिंग क्या होगा? देखो इधर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं तो C डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है. सो आई विल राइट इट इट्स बेटर. एक तो OH ऐसा होना चाहिए, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड वो ग्रुप होना चाहिए, इधर कुछ R मतलब इट मे बी H मिथाइल. ये दो केस में होता है, राइट. एक्चुअली तीसरा और एक भी है, CH3Cl, इधर भी यही होता है. कैसे? एक्चुअली आई एम टेकिंग aqueous NaOH here. aqueous NaOH. NaOH में क्या होता है? क्लोरीन अल्कोहल बनेगा. अल्कोहल बन गया मतलब तो ये प्रोडक्ट, मतलब इधर मिथाइल एंड नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन OH या डबल बॉन्ड हो या Cl है तो इनडायरेक्टली OH वाया OH वापस प्रोडक्ट. इसमें बॉन्ड ब्रेकेज टेक्स प्लेस हियर. ये मिथाइल is there na, this methyl is forming iodoform. So here this methyl is forming iodoform, CH3 iodoform. A remaining part become a carboxylic acid, HCOOH. Either NaOH plus iodine, there is no reaction. Okay, iodoform test. It is the distinguish test. डिस्टिंग्विशन में कैसे कलर या प्रेसिपिटेशन कुछ होना चाहिए. आयोडोफॉर्म होता है LOPPT. So yes sir, right. दूसरा रिएक्शन का सॉलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसका. The last time we checked this reaction with acylation किया था. acylation वो OH की जगह पे acylation हो गया था. अभी रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों का रिएक्शन क्या होगा? ईस्टर फॉर्मेशन होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, राइट. अभी इधर OH एंड हाइड्रोजन निकलेगा, phenol as it is, C double bond OCH3. Methyl salicylate. Another name, oil of wintergreen. Oil of wintergreen. यही रिएक्शन का एसिलेशन करें तो क्या होगा? वो एस्पिरिन टैबलेट, राइट. नेक्स्ट एनसीईआरटी में इतना तक तो है, और आगे कुछ 2-3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे अभी, ओनली जेई पर्पस.
3 more reactions are there for only JEE. JEE and of course NEET maybe, but mainly the JEE. So each and every reaction, whatever I am writing on the board, you need to write. ऐसा नहीं है मैं JEE तो नहीं, that's why no need. Don't think like that. You need to write. तो पढ़ने टाइम में तो that's up to you. You take option that time. Oxidation by HiO4. HiO4 with diols. CH3, CHOH, CH2OH. These are the diols, syn diols. Okay. HiO4 is oxidizing agent. दो OH ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को क्लीव करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी प्राइमरी क्या करते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इमीडिएटली एक OH ऐड करते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। वो आके पूरा ऑक्सीजन नहीं, पहले एक बॉन्ड कट करते एक OH ऐड करते, 2 bonds है तो 2 OH, like that. So here diols, the product is CH3, C, 1 hydrogen, बॉन्ड ब्रेक हो गया इसलिए तो दूसरा OH, पहले एक OH था, then इधर ये कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर OH था पहले, and 1 more OH came right now. Okay, these 2 OH groups, नया groups. What I did, दो OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया था, OH ऐड किया था, this OH and this OH. लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? On same carbon, 2 OH groups are there, removing the water molecule. Right. CH3, 1 hydrogen as it is, 2 OH groups are there, remove the water molecule. Yes, OH, इधर से H, क्या होगा? Double bond O. Plus, here 2 OH groups are there, remove the water molecule. तो आ जाएगा इधर double bond O. 2 hydrogens as it is, अभी बन गया aldehydes. aldehyde में इसका नाम है formaldehyde, acetaldehyde. Finally aldehydes common है. aldehydes. Next, diols हो गया. Next here, suppose one example हो गया. Second example, मैं ऐसा लिया, ठीक है, OH, कीटोन है. अभी क्या होगा? सेम क्लीवेज होगा. I'm taking HiO4, then इधर एक नया OH, पुराना OH, new OH, old OH. It is not the final answer. फाइनल आंसर क्या होगा? ये दोनों से इधर से हाइड्रोजन को निकाल दो, इधर से OH को निकाल दो, क्या बनेगा? अभी कीटोन बनेगा. What about here? Same. So that 2 moles of ketones.
ठीक है, सपोज ठीक है मैं थोड़ा अलग लेता हूँ, चलो अलग लिए, तब क्या बनना है, तो भी कीटोन बनेगा लेकिन अलग अलग बनेगा, राइट। अभी क्या है, लाइक दिस, यस, लाइक दिस, और इधर डबल बॉन्ड ओ, ओके, कीटोन बन रहा है। Not done fast. Okay, not done this. अभी HiO4, कहाँ कहाँ HiO4 का जरूरत होगा, से HiO4 कार्बन ऑक्सीजन एंड एडजेसेंट में दूसरा कार्बन ऑक्सीजन है, तो अब ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो OH है, आल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कुछ लेना देना नहीं, बस टू कार्बन ऑफ CO bonds, in between two CO bonds bond cleavage takes place. देखो it is CO is there, मतलब bond cleavage takes place, CO is there, bond cleavage takes place, right? Now write the products here. You can write one statement here, HiO4 cleave the HiO4 cleave the CO bond in between CC, ओके, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, मैं तो कुछ कंफ्यूजन है वो, चलो इधर दिस टाइप होना चाहिए, राइट। अभी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा OH, ओके। नेक्स्ट मिडिल पार्ट आई एम राइटिंग, C डबल बॉन्ड O इज देयर, राइट साइड बॉन्ड क्लीवेज, सो OH, लेफ्ट साइड आल्सो OH, नेक्स्ट दिस कार्बन प्लस प्लस CH, ऊपर OH, इधर बॉन्ड क्लीवेज, सो वन मोर OH, remaining CH2 OH, रन। इधर तो OH नहीं, इधर बॉन्ड क्लीवेज तो नहीं होगा क्योंकि 2 OH ग्रुप्स तो है लेकिन एडजेसेंट में नहीं, एडजेसेंट में जरूरत है, राइट। Now it is not final product, I am going to write final product, then here the carboxylic acid done, the final add, right, here 2 OH groups are there, मतलब H2O निकलेगा, देखो OH माइनस निकलेगा इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, then it becomes like carbon dioxide plus water, H2O. These are the final products. Here also same, OH निकाल दो, इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, then C double bond O, hydrogen as it is, CH2OH. Okay, the final product 1 2 3 4, these are the products. Understood? Last one more reaction, named reaction, important reaction is there, alcohols खत्म हो जाएगा। Over writing.
पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन मतलब कीटोन, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. OH, OH, methyl, methyl, vicinal alcohols, diols. Now I am using concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. Then what will happen here? CH3C double bond O कीटोन, ये कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स, इधर 2 था, एक मिथाइल ग्रुप इधर से इधर शिफ्ट होगा. ये पिनाकोल मतलब अल्कोहल और पिनाकोलोन कीटोन, अल्कोहल टू डायोल टू कीटोन. ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे. मैकेनिज्म here we are using H plus acid और प्रोटोनेशन होगा, किधर भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं इधर ले रहे, then CH3 4 CH3 groups as it is. Here hydrogen already is there. Okay, one more hydrogen came, H plus, protonation हो गया. See, if you want to remove the OH group from the carbon directly, not possible, but easily you can remove by protonation. By protonation. Protonation मतलब acidic medium. क्यों? देखो इधर H plus दिया, oxygen getting plus. When oxygen getting plus मतलब easily it is always trying to get neutral या negative. ठीक है, अभी बॉन्ड को क्लीव करके कैसे भी तो H2O बनना है. ऑक्सीजन H2O बनना इतना इंटरेस्ट है उसका, कभी भी चांस मिले तो बनेगा वाटर. ठीक है, इसके लास्ट वीक इक्वेशन में क्या था? ऑन कार्बन 2 OH ग्रुप्स आर देयर, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, ऑलवेज ट्राइंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होना, H2O बनना है, कुछ NaCl निकालना है. सो शॉर्ट molecules are very stable, those are always trying to get eliminated, right? So H2O अभी निकलेगा, डन. तो कार्बोकैटायन आ जाएगा, राइट. दूसरा क्या था इधर? OH, राइट, OH. now CH3 as it is, CH3, then CH3 OH तो है. ठीक है, काम करो, OH ऊपर लिखता हूँ, CH3 नीचे. इधर तो फाइनली कार्बोकैटायन तो बन गया. एवरीवन यू अंडरस्टूड दिस अप टू कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन तो समझ गए आप? यस. सी इट इज अ टर्शरी कार्बोकैटायन, तो ठीक है, लेकिन इससे सपोज कुछ चांस है ये माइग्रेट हो गया है तो क्या होगा देखते. सपोज माइग्रेट हो गया, उसके बाद CH3 इधर, दूसरा CH3, अभी इधर कार्बोकैटायन बन गया. Now you tell me, in between these two, which carbocation is more stable? This tertiary carbocation या this secondary carbocation? Which is more stable? Tertiary या secondary? Which is more stable? ये तो tertiary carbocation था, ये तो secondary carbocation है. लेकिन which is more stable? Hello.
सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, जनरली टर्सरी स्टेबल, लेकिन इधर मेसोमेरिक इफेक्ट है। देखो कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कौन दे रहे, पापा दे रहे, मामा दे रहे, कुछ और फ्रेंड दे रहे, कोई भी देने दो, चाहिए तो उनका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर क्या था, वो सब बोलते मैं देता हूं, लेकिन सच में तो देते नहीं, भरोसा देते, बस इतना ही, क्योंकि तो कोवेलेंट बॉन्ड था जस्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन sp2, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचते, वो भी तो थोड़ा देते, लेकिन ये ऑक्सीजन है तो पूरा लोन पेयर देते, पूरा लोन पेयर देने का रेडी। सो ऑब्वियसली इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है, तो बन गया, इसलिए तो रीअरेंजमेंट हो गया। मोर रीअरेंजमेंट कब होता है, बाय शिफ्टिंग एनी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, इफ इट इज फॉर्मिंग स्टेबल कार्बोकेटायन, देन रीअरेंजमेंट होगा, फिक्स्ड है, वो भी एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट होने का फुल फेवरेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो तो कार्बोकेटायन बन गया, सेकेंडरी है, फिर भी तो मोर स्टेबल है, सेकेंडरी, यू कैन राइट इट हियर, सेकेंडरी बट मोर स्टेबल, सेकेंडरी C+ बट मोर स्टेबल, और आगे लिखना है तो ड्यू टू लोन पेयर लिख सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा, बस तो क्या होगा, तो इसको चाहिए तो अभी 2 स्टेप्स में लिख सकते, एक तो ऐसा मैं लोन पेयर देख के उसके बाद प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन को निकालना, नहीं तो सीधा हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, कैसे भी कर सकते, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स चलेगा। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख रहे हैं मैं, इधर प्लस कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर तो CH थे, ऑक्सीजन को प्लस आ गए, प्लस तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इमीडिएटली ये इलेक्ट्रॉन्स लेते, हाइड्रोजन को छोड़ते, ठीक है, अभी बन गया, तो यही तो आंसर है, राइट, टर्सरी प्लस C डबल बॉन्ड को, मतलब इधर क्या होगा, -H+, H+ लेफ्ट, नोट डाउन एवरीवन, पिनाकोल पिनाकोलोन rearrangement, phenol, it is the common name as well as IUPAC name. Many aromatic compounds names considered as IUPAC names, ठीक है, that's why एग्जाम में 99% क्वेश्चन एलिफैटिक से पूछेगा, एरोमेटिक से नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछे तो तुम्हारा बैड लग है, बस इतना ही, देयर इज नो रूल, ऐसा नहीं पूछना है तो पूछ सकते, बट अभी तक मैक्सिमम आई चेक दैट नहीं पूछा था क्वेश्चन। CH3OH, और ये कॉमन नेम है, एक्चुअली क्या है, मिथाइल, फिनाल में सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, IUPAC लिख सकते हैं मैं, 2 मिथाइल फिनाल, 2 मिथाइल फिनाल, and common name is क्रीजोल्स, क्रीजोल, ये क्रीजोल मतलब बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH एंड मिथाइल ग्रुप इज देयर, लेकिन कहां है वो पोजीशन, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन हियर ऑर्थो, ONF, ऑर्थो क्रीजोल मतलब बेंजीन के ऊपर एक अल्कोहल है, एक मिथाइल ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन मतलब 1,2 पोजीशन में है, सो ये पता है तो रिमेनिंग 2 यू कैन राइट इट इजीली, CH3OH is there, ठीक है, अभी क्या होगा, ये मेटा क्रिजोल होगा, कॉमन है मेटा क्रिजोल। IUPAC कुछ लोग ऐसा करते हैं, सर मिथाइल तो ऊपर इधर से नंबर, नो, OH फंक्शनल ग्रुप से नंबर चालू होता है, सो नंबर 1 2 3 4 5 6, 3 is enough, of course, but
मेटाक्रिजाल तो कॉमन नेम हो गया। उसके बाद 3 मिथाइल, नॉट 3 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल phenol, 3 methyl phenol, and one more you can write it। ठीक है, मैं OH ऊपर लिखता हूँ, मिथाइल नीचे लिखता हूँ। ठीक है, राइट। अभी नंबर 1 2 3 4 4 मिथाइल phenol। इधर क्या होगा? पैराक्रिजोल, पैराक्रिजोल। नोट डाउन फर्स्ट। नेक्स्ट डायोल्स, बेंजीन में भी डायोल्स होता है। OH OH ऐसा नहीं लिख सकते अभी 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, क्योंकि OH बोथ आर इक्वल प्रेफरेंस। इक्वल प्रेफरेंस में क्या करते हैं हम? इक्वल प्रेफरेंस, इसलिए दोनों को नहीं देते फंक्शनल ग्रुप, राइट। सो नाउ टेकिंग एज सब्स्टिट्यूशन जैसा, बेंजीन 1,2 डायोल्स, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स दिया। बेंजीन 1,2 डायोल्स, दिस लास्ट E also present, okay। बेंजीन, इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम कैटेकॉल, कैटेकॉल, CATECHOL, कैटेकॉल, okay। Next, if OH groups are at 1,3 position is there, IUPAC तो लिख सकते हैं इजीली। बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,3 डाइओल। Common name that is also important, because in the exams they will give you that which has more acidic strength या कुछ reactivity, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल कुछ दे दे तो वो तो पता चलना है कौन है रिसोर्सिनॉल, क्या होता है। ठीक है, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, एक मिनट स्पेलिंग देखते हैं, RESORCINOL, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। नेक्स्ट, ये OH 1,4 पोजीशन में भी हो सकता है। ठीक है, बेंजीन, IUPAC लिखना इजी है, बेंजीन 1,4 डाइओल। देखो IUPAC इतना इजी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब एक मेथड पता है तो इजीली यू कैन राइट इट, सब में क्लियर है। लेकिन इधर कैटेकॉल था, ये रिसोर्सिनॉल, ये क्यों बोल रहे इसको पता ही नहीं। ठीक है, होता है साइंटिस्ट का नाम और रिसोर्स कहां से प्रोड्यूस कर रहे, मैनी रीजंस आर देयर। ना उसका नाम है क्विनोल, क्विनोल। एक क्विनोन भी आता है, इधर C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड है तो क्विनोन होता है, तो कार्बोस नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट इज अ क्विनोल, ऑयल, अल्कोहल इंडिकेटिंग। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्विनोन। इज इट विजिबल? क्विनोल ब्रैकेट में लिख दो, और हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं देखता हूं मैं, वो भी रीजन। दिस इज द क्विनोन, 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 ये क्विनोन से आ गया, ये क्विनोन, ये तो सिमिलर है ना, ये कीटोन था, ये अल्कोहल था। क्विनोन
उसके बाद क्विनोल, इसमें हाइड्रोजन रखे तो वही तो क्विनोल, हाइड्रोक्विनोन मतलब क्विनोन में हाइड्रोजन रख दिया, हाइड्रोक्विनोन। All phenols give characteristic color with FeCl3। एक बार बोल दिया था ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब उसका कलर। All phenols give characteristic color with FeCl3, right? Phenol, FeCl3 I am taking. FeCl3 is giving violet color. Violet color. Suppose if I take ROH, alcohol, FeCl3, no color. नो कलर मतलब ये तो आइडेंटिफाई किया है।